Welcome back in new episode of Spell Out, a podcast where we spell out everything. I am यस एंड आज हमारे साथ है शिवम जो अभी यूरोपियन एड फॉर्म में काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। आईआईटी दिल्ली, डीयू और भी कई जगह पे उन्होंने यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। ये पॉडकास्ट हमने 2 महीने पहले रिकॉर्ड की थी, लेकिन लाइफ डज नॉट ऑलवेज गोज एज प्लान एंड दैट्स ओके। इन दिस एपिसोड we will uncover the transformative power of faith and surrender और कैसे यूथ वेस्टर्न कल्चर को आंख बंद करके फॉलो कर रही है और वही दूसरी ओर कुछ हमारी संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। तो बात करते हैं हम शिवम से। हेलो एंड वेलकम इनटू अनदर एपिसोड ऑफ स्पेल आउट। आज हमारे साथ है शिवम जिन्होंने अपनी लाइफ एक तरह से कहे तो स्पिरिचुअलिटी में समर्पित कर दी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे। So, hi Yash and everyone. Thank you very much for having me on this platform. It's a wonderful opportunity. So, my name is Shivam, and currently I'm talking with everyone, to all of you from Delhi. So, I did my graduation in physics from Haridwar, and there from beginning, शुरुआत से एक urge थी to know more. What is the purpose of human form of life? Are we just here to eat, sleep, mate, and defend? एक ह्यूमन लाइफ और एक एनिमल लाइफ में क्या डिफरेंस है? हाउ इज द ह्यूमन लाइफ बेटर देन एन एनिमल लाइफ? इस यूनिवर्स का पर्पस क्या है? क्या हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, बच्चे करना है और मरना है? इज देयर सम मीनिंग टू ऑल दिस, और इट इज जस्ट टू लाइक eat, sleep and be merry? So for that there was always some yearning. I was looking for answers, and therefore I was going to several spiritual organizations कि कहीं पर तो आंसर मिलेगा, but नहीं मिल पा रहा। But eventually I came in touch with ISKCON, and I started asking the same question to ISKCON people. Asking what is the purpose of human form of life, who is God, what is my relationship with God, how can I reestablish my relationship with God? अगर भगवान के पास सब कुछ है तो मैं इस दुनिया में मर पिट क्यों रहा हूँ? अगर भगवान पूरी दुनिया के राजा है तो why am I afraid of corona? Of course, this is not the question that I asked because it was long back, but I had several questions like this, and I got the perfect answer to all these questions in Bhagavad Gita. And I was very much satisfied, and that's how I came in touch with ISKCON. I completed my graduation, I started doing job, and I also started taking several services. We started reading Bhagavad Gita, and we started teaching Bhagavad Gita to youths all across the nation. And it's been around 5-6 years now, and here I am in front of you. जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इसमें अलग से सब करने की क्या ज़रूरत है, हम अपने घर पे पूजा पाठ तो करते ही है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बीइंग अ स्पिरिचुअल? Okay, so this is a very important, another very important question. आजकल बहुत सारे conceptions, या rather we should say misconceptions are getting popular. कि what is the need of being religious when you can become spiritual? बस जी दिल साफ होना चाहिए जी, दिल में भगवान का नाम होना चाहिए। आप मन से किसी के लिए बारे में बुरा मत सोचो, फिर आपको ये भक्ति वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। बट एक्चुअली सिर्फ मन में किसी के बारे में अच्छा सोचना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। और आप अच्छा सोच भी नहीं रहे हो, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, ये भी आप कैसे बता सकते हो? So all these are vague ideas and ideas to escape core spirituality. ये कोई बहुत well proved, well written, backed by शास्त्र आइडियाज नहीं है कि बस दिल में सबके लिए अच्छा होना चाहिए, भाई दिल से किसी के बारे में बुरा मत सोचो, आप अपनी जिंदगी अच्छी जियो, आपको क्या जरूरत है भक्ति वगैरह करने की? बट ऑल दीज आर वेग आइडियाज। आपको क्या पता सही और गलत क्या है? अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते, हाउ कैन यू डिफाइन राइट एंड रॉन्ग? अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते, आपको क्या पता कि किसी के बारे में जो सोच रहा हूँ वो अच्छा सोच रहा हूँ या बुरा सोच रहा हूँ? So there are several logical questions that come up, and all those questions can be answered and understood when one goes to scriptures, when one takes shelters of scriptures. So ये कहना कि मुझे मैं घर में अपनी पूजा करता हूँ, मुझे अलग से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की जरूरत, क्योंकि आप जो घर में कर रहे हैं, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट इज जस्ट सम शो ऑफ, इट इज नॉट कोर स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप शो ऑफ करेंगे तो नुकसान तो आपका ही है। But if you sincerely take spirituality, we are not saying that you have to give up your family life, you give up your career, you give up your dreams, but you have to sincerely understand who am I, who is God, what is my relationship with God. And if we sincerely try to understand this, then all the problems of our life will be solved. But if we just try to
अवॉइड स्पिरिचुअलिटी बाय गिविंग दिस आंसर्स कि जस्ट मैं भक्ति कर रहा हूँ ना, इससे किसी को कुछ और करने की क्या आवश्यकता है, या कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है, या मुझे स्क्रिप्चर्स पढ़ने की क्या आवश्यकता है, या मुझे साधुओं के पास जाने की क्या आवश्यकता है, या मुझे भगवान के नाम लेने की क्या आवश्यकता है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप स्पिरिचुअलिटी एंड नो वन इज एट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉलेजेस में जाते हैं, एक पूरा कॉलेज का करिकुलम होता है, उसमें आपके टेस्ट होते हैं, उसमें आपके वाइवास होते हैं, उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये सब करने के बाद 4 साल के बाद आप एक बीटेक बनते हो, तब आपको नौकरी मिलती है। अगर आप जस्ट कहो कि ये सब मुझे करने की क्या आवश्यकता है, मैं जस्ट कुछ बुक्स यहाँ वहाँ पढ़ लूंगा, कुछ लेक्चर्स मैं ऑनलाइन देख लूंगा, और कुछ क्लासेस बंक कर लूंगा, थोड़ा घूम फिर लूंगा। 4 साल, आप 4 साल कंप्लीट कर लोगे, हो सकता है आप एग्जाम्स भी पास कर लो, बट यू विल बी अ यूजलेस इंजीनियर, गुड फॉर नथिंग। और उसके बाद किसका नुकसान है? यू आर एट लॉस। So if we want to sincerely follow practices, the path of spirituality, it will give us all gain. But if we want to skip it, then we are at loss. ये तो हो गई बात स्पिरिचुअलिटी की, और आपने भगवान के बारे में भी कहा। तो आप भगवान को कैसे देखते हो? Okay, इंडिया में हर कोई अलग अलग तरीके से भगवान को देखता है। कोई कहता है शिव जी भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है दुर्गा माता भगवान है, कोई कहता है कोई भगवान नहीं है, कोई कहता है सब भगवान है, कोई कहता है गणेश जी भगवान है, कोई कहता है साईं बाबा भगवान है, कोई कहता है पेड़ भगवान है, कोई कहता है पत्तियां भगवान है। ठीक, बड़ा हौज-पौच सा बना हुआ है कि एक्चुअली वो भगवान कौन है? हु इज गॉड? एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि इन सारे इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, इन सारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन भगवान है? कोई कहता है स्वामी नारायण भगवान है, कोई कहता है, लाइक एवरीवन हैज गॉट हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, एंड एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट फ्रॉम अदर्स अंडरस्टैंडिंग। और इस सब के बीच में भगवान कौन है ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर कैसे समझा जाए? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, उसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता वो बुक है जो इंडिया के सभी सोसाइटी, सभी स्पिरिचुअल मास्टर, सभी संप्रदाय, सभी स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया भगवत गीता को। तो चलिए भगवत गीता से पूछते हैं कि भगवत गीता आप बताइए कि भगवान कौन है। सो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्त परतरम नान्यत्, देयर इज नो वन सुपीरियर टू मी। कृष्ण इज सेइंग, मत्त, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, किंचिदस्ति धनंजय, इवन बाय स्लाइटेस्ट एक्सटेंट, थोड़ा सा भी कोई मुझसे ऊपर नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे कि एक माला होती है ना, उसके बीड्स होते हैं, हमें बीड्स तो दिख रही होती है, लेकिन बीड्स के अंदर का धागा नहीं दिख रहा होता है। लेकिन अगर आप उस धागे को हटा दो तो पूरी माला गिर जाएगी। इसी तरीके से भगवान इस पूरी यूनिवर्स को चला रहे हैं, हो सकता है हमें दिखे ना, भगवान श्री कृष्ण इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं, हो सकता है हमें दिखे ना, बट ही इज द यूनाइटिंग फैक्टर हु इज ऑपरेटिंग दिस एंटायर यूनिवर्स। Krishna says in Bhagavad Gita that this entire universe emanates from me, and at the end, this entire universe culminates unto me. So Bhagavan established that I am God. Krishna says, Matchita Madgata Prana Bodhayanta Paraspara. You should always think of me. You should fix your consciousness on me. You should always meditate upon me. You should always remember me. You should always worship me. So Krishna is clearly establishing in Bhagavad Gita. There is not even an iota of doubt about it. इसमें कोई शक नहीं है। भगवान इस सत्य को स्थापित कर रहे हैं that he is God. Krishna is God. He is establishing it in Bhagavad Gita. And he accepts the teachings of Bhagavad Gita. Everyone should accept the teachings of Bhagavad Gita. And everyone accepts the teachings of Bhagavad Gita. Krishna is clearly establishing that Krishna is God. भगवान कह रहे हैं मेरा स्वरूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो वही स्वरूप एब्सोल्यूट वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतां समसितं बुधसुन्दराङ्गम्. So, so Krishna has got this blissful form. He's playing this flute. He has got a peacock feather. He's wearing yellow garment. He's traveling in Vrindavan. So that Krishna is the supreme absolute truth. यही भगवत गीता में establish किया गया, and that only we accept. It is not a self-concocted idea. बहुत सारे लोग कहते हैं ये बाबा जी भगवान है, वो बाबा जी भगवान है, बट अगर आप उनसे शास्त्र प्रमाण मांगो, वो शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकते। बट हमारे पास शास्त्र प्रमाण है। ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन ऐसा कह रहा है या मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए कृष्ण भगवान, पर शास्त्रों में आप देखेंगे शास्त्र स्टैब्लिश करते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारियाकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो इट सेज कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही, everyone else is coming from him. So we accept Krishna as supreme personality of God.
और ये सिर्फ इस्कॉन नहीं कह रहा, ये पूर्ववर्ती आचार्य जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य, श्री रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन सभी आचार्यों ने, ऑल दीज वैदिक स्कॉलर्स, ऑल दीज वैदिक मास्टर्स हैव एस्टैब्लिश्ड कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. So Krishna is God. श्याम सुंदर कृष्ण is God. And he is not impersonal. वो निराकार नहीं है, वो साकार है. Yes, yes. तो इस्कॉन की बात करते हैं, तो हमें इसके बारे में और बताइए, इस्कॉन कम्युनिटी के बारे में. ओके, इस्कॉन क्या है? सो इस्कॉन कई बार कहा जाता है, इस्कॉन पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि अमेरिकी संस्था है, ये देश का पैसा विदेशों में भेजती है, ये एफबीआई है, यहाँ सब विदेशी लोग होते हैं, वो अमेरिका उन्हें भेजता है इंडिया में जासूसी करने के लिए. तो अलग अलग तरह के आरोप इस्कॉन पर लगाए जाते हैं. बट ये समझना पड़ेगा कि इस्कॉन कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इस्कॉन कोई नया संप्रदाय लेकर नहीं है. इस्कॉन की शिक्षाएं, तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हम स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा नहीं होता कि मैं किसी पहाड़ पर गया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं मैं पहाड़ पर गया, वहां मैंने ध्यान किया, ध्यान करके मुझे ज्ञान मिल गया. दिस इज नॉट द वे फॉर अचीविंग नॉलेज. ज्ञान मिलता है हमें परंपरा से. भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम यम राजर्षियों विदुः. तो ज्ञान जो प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है परंपरा, कि गुरु और डिसाइपल का रिलेशनशिप होता है. गुरु ने अपने डिसाइपल को सिखाया, डिसाइपल ने अपने डिसाइपल को सिखाया, डिसाइपल ने अपने डिसाइपल को सिखाया. इस प्रकार से जो आप, सो देयर आर 4 संप्रदायस, 4 स्कूल्स जिनमें हमें नॉलेज मिलता है. जैसे आप इंडिया में देखते हो ना, सीबीएसई है, आईसीएसई है, ऐसे अलग अलग कॉलेज वो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं. आप किसी स्कूल में तभी जाते हो जब वो इनसे ऑथराइज्ड होता है. कोई सड़क छाप स्कूल पे आप नहीं जाते, आप पूछते हो कि ये सीबीएसई ऑथराइज्ड है, हाँ ये ऑथराइज्ड है, देन यू गो एंड टेक क्लासेस. सिमिलरली स्पिरिचुअल नॉलेज भी हमें ऐसे नहीं आना चाहिए कि अरे इस गुरु, ये गुरु तो इंग्लिश बोलता है, इस गुरु के तो बहुत फॉलोअर्स हैं, ये गुरु तो देखने में बहुत बढ़िया है, ये गुरु तो बहुत कैरिज्मेटिक है. ये तरीका नहीं होता है स्पिरिचुअल नॉलेज में. स्पिरिचुअल नॉलेज हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो किसी ऑथराइज संप्रदाय से, किसी ऑथराइज स्कूल से नॉलेज गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो जैसा मैं बता रहा था, देयर आर 4 ऑथराइज स्कूल एज पर स्क्रिप्चर्स. इट इज श्री संप्रदाय, इट स्टार्ट्स विद लक्ष्मी देवी. Then there is Brahma Sampradaya, which starts with Brahma. Then there is Kumar Sampradaya, which starts with Chatush Kumaras. And then there is Rudra Sampradaya, which starts with Lord Shiva. And these are 4 schools. तो अगर किसी को एब्सोल्यूट ट्रुथ चाहिए, अगर किसी को परम सत्य को जानना है, अगर किसी को भगवान को जानना है, then he has to go to one of these 4 schools. And one of these 4 schools is Brahma Sampradaya, which starts with Lord Brahma. So Krishna, he gave spiritual knowledge to Brahma, Brahma gave to Narada, Narada gave to Vyas, Vyas gave to Madhvacharya, and in this way, this entire knowledge was passed on over generations. And that's then in the same line came Madhavendra Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is coming in that Brahma Sampradaya line. And that Srila Prabhupada, at the age of 69, he was instructed by his spiritual master कि this knowledge of Bhagavad Gita, इसको सिर्फ इंडिया में क्यों लिमिटेड रखना है. भगवान गीता में ये तो नहीं कह रहे कि ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए, वो ये तो नहीं कह रहे कि ज्ञान सिर्फ भारतवासियों के लिए. दिस नॉलेज इज फॉर एंटायर मैनकाइंड. और क्यों हम इस भगवद गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में लेकर ना जाएं. तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, आप गीता के इस ज्ञान को पूरे विश्व में क्यों नहीं प्रचार करते. और अपने गुरुदेव की वाणी को श्रील प्रभुपाद ने हृदय में धारण करके एट द एज ऑफ 69, जब पूरी दुनिया रिटायरमेंट ले रही होती, जब पूरी दुनिया घर में तेल की मालिश कर रही होती है, जब उनके जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, जब लोग अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे होते हैं, कृष्ण कृपा शिमर तेरा भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद निकल गए अमेरिका की यात्रा पर जलदूत पर. उस शिप से गए वो यहाँ से बोस्टन, कलकत्ता से लेकर बोस्टन. उस रास्ते में उन्हें 3 बार हार्ट अटैक्स आए, बहुत सारी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी. वो पैसिफिक समुद्र, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी, वहां जाके भी प्रभुपाद किसी को नहीं जानते, कोई प्रभुपाद का वहां इंतजार नहीं कर रहा है. वहां पर हिप्पी कल्चर, हिप्पी मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में, जिसमें पूरे देश के युवाओं ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था. सरकार और समाज के नियमों को मानना छोड़ दिया था. शराब पीना, नशा करना और अवैध संग करना, नंगे पड़े रहना सड़कों पर, ये सब तो जैसे सामान्य बात थी. और इन सब के बीच, इन सब पूरी तरीके से समाज से निष्कासित युवाओं के बीच इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे 1969 में. और वहां पर न्यूयॉर्क में, आज से तकरीबन 55 साल पहले, न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्टोर फ्रंट में, दुकान में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की. और उसके बाद न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, लंदन और इवेंचुअली श्रील प्रभुपाद इंडिया आए और भारत में उन्होंने प्रचार किया. तो जो लोग ये कहते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है,
इस्कॉन भारत का पैसा विदेश भेजती है। अगर भारत का पैसा विदेश भेजती है तो सबसे पहला मंदिर तो भारत में बनाना चाहिए, क्यों वेस्ट में नहीं बनाया, है ना? या फिर इस्कॉन एक न्यू एज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। नहीं, हमारा सिद्धांत है, हम संप्रदाय, प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए, वी आर कनेक्टेड टू मध्वाचार्य, वी आर कनेक्टेड टू ब्रह्म संप्रदाय। सो शिला प्रभुपाद एस्टैब्लिश्ड इस्कॉन, और आज तकरीबन 55 साल बाद इस्कॉन के 800 मंदिर, पाम्स, वर्णाश्रम कम्युनिटीज, कॉलेजेस हैं, और पूरे विश्व में इस्कॉन वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा भगवत गीता लोग पढ़ते हैं वो इस्कॉन के द्वारा प्रकाशित है। पूरे विश्व में वैदिक साहित्य वितरित करने का जो सबसे बड़ी संस्था है जो वैदिक साहित्यों का वितरण कर रही है वो इस्कॉन है। सो सनातन धर्म के जय पताका को, द विक्ट्री फ्लैग ऑफ सनातन धर्म, it was propagated in entire world by ISKCON today. So ISKCON is not a foreign organization, it is a Vedic organization. और ISKCON ने दिखाया that even Westerners can practice Krishna bhakti. बिल्कुल, this is ISKCON in a nutshell, छोटा सा introduction. तो हमने पहले भी बात की कि लोग ये कहते कि वो फिजिकल वेलनेस नहीं करेंगे, हमारे तो दिल में राम है, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। तो आपके हिसाब से ये कितनी हद तक बात ये सही है? हम्म, हम्म। तो जैसा मैंने पहले बताया, ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। ये कहना कि हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अपना हम मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें बूंदी चढ़ाते हैं, और हम सावन में शिव जी को जल चढ़ाते हैं, और हम साल में एक बार वैष्णो देवी जाते हैं, और मैं सुबह सुबह भगवान को ऐसे ऐसे प्रणाम कर लेता हूँ और ये मेरे लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, आप इस चेतना से बाहर निकलिए कि भगवान को हमारी जरूरत है। भगवान को हमारी कोई जरूरत नहीं। गॉड डजंट नीड्स अस, वी नीड गॉड। हमें भगवान की जरूरत है। भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं ब्रह्मांड में, हमें फ्री की हवा, फ्री का पानी, फ्री का खाना। अरे पैसा तो किसान लेता है, भगवान तो फ्री में देते हैं। पृथ्वी तो फ्री में उगाती है, पृथ्वी क्या पैसा लेती है? तो भगवान हमें ये सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, इज नॉट टेकिंग इवन अ सिंगल पेनी। कोरोना के टाइम पे लोगों ने हजारों लाखों रुपए का ऑक्सीजन खरीदा, वो ऑक्सीजन जो हम जन्म से लेकर अभी तक फ्री में ले रहे हैं भगवान से। तो ये समझना कि मैं थोड़ा सा पूजा करके भगवान के ऊपर एहसान करो, आप एहसान नहीं कर रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। So spirituality is not a weekend business या फ्री टाइम बिजनेस की। फ्री टाइम होगा तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करूंगा, या फिर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही क्या है? मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, मैं मंदिर में दान भी देता हूँ, और कभी कभी मैं मंदिर भी चला जाता हूँ। सर, ये विशी वॉशी भक्ति करने से, अपनी मर्जी के हिसाब से भक्ति करने से सिर्फ आप नुकसान है। मनुष्य जन्म मिला है हमें, और ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहो देही नाम शरणभंगरम। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद गाय, बैल, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, मधुमक्खी, देवता, असुर, क्या क्या शरीर में आप भटके हैं, उसके बाद जाके आपको एक दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, और वो भी बहुत क्षणभंगुर है। कब है और कब एक इनविजिबल वायरस आपकी जान ले लेगा, कुछ नहीं पता। वी हैव गॉट दिस रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड वी शुड यूटिलाइज दिस रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू अंडरस्टैंड व्हाट हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, हाउ कैन आई सर्व गॉड। एंड इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको अपनी बाकी जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़नी है, बट वी हैव टू नो कि एक दिन आई हैव टू लिव दिस बॉडी। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, एंड सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर के भरण पोषण पे इतना ध्यान लगा रहा हूँ, जन्म से लेकर अभी तक पढ़ाई की, फिर मैंने जॉब की, फिर परिवार पाला, तो सारे बच्चों के, और एवरीथिंग वाज अराउंड बॉडी। वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ सोल? हम शरीर थोड़ी, हम आत्मा है। आत्मा का तो आप ध्यान ही नहीं रख रहे, और आत्मा का ध्यान आप कैसे रख सकते हो? बिकॉज आत्मा इज स्पिरिचुअल, इट विल बी नरिश्ड व्हेन यू गिव इट स्पिरिचुअल थिंग्स, व्हेन यू गिव इट स्पिरिचुअलिटी। सो वी आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ आवरसेल्व्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप बीटेक में 4 साल अच्छे से पढ़ाई करते हो, सारी क्लासेस अटेंड करते हो, सारे लैब, सारे प्रैक्टिकल, सारे वाइवास, सब कुछ अच्छे से करते हो, यू विल बी अ वंडरफुल इंजीनियर बाय द एंड ऑफ 4th ईयर। बट आप बस ये, अरे यार पढ़ता हूँ ना, मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा कभी कभी किताब के सामने हाथ जोड़ लेता हूँ, कभी किताब को अगरबत्ती कर देता हूँ, कभी कभी मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। और मैं 4 साल में 4 बार लैब भी गया था। अगर आप इस फिलोसफी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स क्रैक कर लिए, सारे में मेरे जीपीए आ गए, मैं सभी एग्जाम्स में पास हो गए, यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ। किसका नुकसान? क्या प्रोफेसर का नुकसान कर रहे हो, या कंपनीज का नुकसान कर रहे हो, या अपने क्लासमेट्स का, या कॉलेज का? नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हो। इस तरीके से हम ये सोचे कि यार मुझे भक्ति करने की जरूरत है, मैं थोड़ा अपना
अगरबत्ती वगैरह घुमा लेता हूँ ना, that is fine. No sir, that is not fine. You should try to know who am I, where am I coming from, what is the human form of life. Therefore, Mahabharata says, Ahara nitra bhaimaithunam cha samanyam pashubhe narana dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina pashubhe samana. There are four similarities between humans and animals. Ahar, nidra, bhay and maithun. Eating, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं. Sleeping, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं. डिफेंडिंग, हम भी अपने आप को बचाते हैं, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, घर बनाते हैं, एलआईसी रखते हैं. जानवर के पास सींग होते हैं, वो आपसे बचाता है, लेकिन बेसिक एक्टिविटी सेम है. एंड मेथड, वी आल्सो एंगेज इन सेक्स लाइफ. जानवर भी सेक्स लाइफ एंगेज होते हैं. तो अगर आप देखो सुबह से लेकर शाम तक और रात इंक्लूडेड, आप जो कर रहे हो जानवर भी कर रहे हैं. आप सो रहे हो वो भी सो रहे हैं, आप खा रहे हो वो भी खा रहा है, आप अपने आप को बचा रहे हो, जॉब वॉब कर रहे हो वो भी कर रहा है, आप सेक्स लाइफ में एंगेज हो रहे हो वो भी हो रहा है. देन व्हाट्स द डिफरेंस? महाभारत का डिफरेंस क्या है आपके और जानवर के बीच में? आप सिर्फ द्विपाद पशु, दो पैर पे चलने वाले जानवर, क्योंकि आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो जानवर नहीं कर सकता. तो फिर डिफरेंस क्या है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो. धर्म इज दैट फैक्टर, भक्ति इज दैट फैक्टर, स्पिरिचुअलिटी इज द फैक्टर जो जानवर नहीं कर सकता. हम दोनों बैठ के डिस्कशन करके स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपका पेट कुत्ता है, वो इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं होगी. ये घर के बाहर जो गाय है, वो इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं होगी. ये जो घर के अंदर छिपकली है, वो इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं होगी. वो भी ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग कर रही है, आप भी ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग कर रहे हो. बट स्पिरिचुअलिटी इज दैट फैक्टर व्हिच डिफरेंशिएट्स द ह्यूमन फ्रॉम एन एनिमल. Therefore, we should practice spirituality because that is possible only in human form. We should not be loose about it. जो आज की यूथ है हमारी न्यू जनरेशन, जो वेस्टर्न कल्चर को आंख बंद करके फॉलो करती है, हमारे देश की जो संप्रदाय है वो उसको बुलाते जा रहे हैं. मैंने देखा है कि आप जैसे बहुत लोग हैं जो अभी भी इन सब में मानते हैं और उनकी वजह से ही सब कुछ बचा हुआ है. तो बाकी सबके लिए आपका क्या मैसेज है? So हमें समझना चाहिए दो चीजें हैं. पहला, there is a massive propaganda from Christian missionaries, from Middle East, from West liberals. There is a massive propaganda in this nation. किस तरीके से इस देश के रूट्स को खत्म कर दिया जाए. आज से तकरीबन 300-400 साल पहले जब सबसे पहले यूरोपियन इन्वेडर्स इंडिया के तट पर पहुंचे, तो वो पूरी दुनिया जीत के आए थे. और वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे वहां के, वो कल्चरल लीडर्स भी बन गए, क्योंकि उन्होंने उस जगह के कल्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया. वो साउथ अमेरिका गए, वहां के कल्चर को खत्म कर दिया पूरा. दे स्प्रेड देयर रिलीजन, देयर मेथड्स. नॉर्थ अमेरिका गए, वहां के कल्चर को खत्म कर दिया. अफ्रीका गए, वहां के कल्चर को खत्म कर दिया. ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के कल्चर को खत्म कर दिया. तो उन्हें ये आदत थी कि हम जहां जाएंगे, हम सिर्फ पॉलिटिकली डोमिनेट नहीं करेंगे, हम कल्चरली भी डोमिनेट करेंगे. बट जब वो इंडिया आया, इंडिया वाज एन एक्सेप्शन. इंडिया अभी 800 साल के इस्लामिक रूल से बाहर निकला है और अब आए हैं ब्रिटिशर्स अपना कल्चर इंपोज करने के लिए. इतना कुछ सहा है इस देश ने, बट फिर भी ब्रिटिशर्स डिडंट बिकम सक्सेसफुल. द इन्वेडर्स जो पूरे देश को खत्म करना चाहते थे, वहां पर एक तरह का आइडियोलॉजी, एक तरह का धर्म डालना चाहते थे, दे कुडंट बिकम सक्सेसफुल. वो नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम वाज सो स्ट्रांग, बिकॉज आवर कल्चर, आवर सोसाइटी वाज सो स्ट्रांग, बिकॉज जो वेदास है वो इतनी ज्यादा डीपली एनग्रेन्ड है इंडियन सोसाइटी में कि आप कुछ भी करके ना इंडियन सोसाइटी से वैदिक टीचिंग्स को, वैदिक मैसेज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. 1000 साल तक इन्वेडर्स ने, चाहे वो यूरोपियन इन्वेडर्स थे या मिडिल ईस्ट से थे, उन्होंने पूरी कोशिश की इस देश को कल्चरली बर्बाद करने की, बट दे डिडंट बिकम सक्सेसफुल. नहीं हुए सफल. उसके बाद उन्होंने कोशिश की देश के एजुकेशन सिस्टम को खराब करो, एंड देन दे बॉट इन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम. उन्होंने वैदिक एजुकेशन सिस्टम को, गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया. देन दे बॉट इन फैशन. सो इट वाज वेरी प्लान्ड. इट इज मकालेस प्लान जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं उन्हीं इन्वेडर्स के बारे में, हमें देश की संस्कृति के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता इस तरीके से. एंड देन वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा शॉर्ट्स, जहां पे दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग, एंडलेसली स्क्रॉलिंग. और देश का यूथ अगर एंडलेसली स्क्रॉल करता रहेगा, आई वाज रीडिंग, अमेरिका is the richest country in the world, but 31.8% of American youths are facing anxiety. क्यों? वहां पर तो सारी फैसिलिटीज है, वहां पर बेस्ट स्कूल्स हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, पैसे की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. Why are they feeling anxiety? Because there is no culture, there is no spiritual training, there is no scriptures. और इंडियंस भी अब उनको फॉलो कर रहे हैं. इंडिया में भी एज पर रिसेंट रिपोर्ट 12.8%, अराउंड 13% ऑफ इंडियन यूथ आर फेसिंग एंजाइटी. एंड ये बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है. इस तरीके से वी आर फॉरगेटिंग आवर रूट्स.
we are not giving an attention to our Vedic knowledge, जिसमें सभी तरह की चीजों का आंसर है जो अब पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, but we are forgetting. And that is very, very depressing. Like we go to several colleges in DU, in IITs, in NITs, and we see how नशे में पूरी तरीके से, like I have been to several IITs, I have seen students so much engrossed in drinking, smoking, अलग अलग तरह के नशे। पेरेंट्स तो बहुत प्राउड है, सादा पुत्र आईआईटी ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ, आईआईटी ਵਿੱਚ आपका पुत्र की करता ਸੀ, क्या कर रहा है आपका बच्चा आईआईटी के अंदर? So that is very big problem. But till the time, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। प्रहलाद महाराज कहते हैं at the age of 5 we should start spiritual education to a child. हमें उसे धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। We should teach them Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and other Vedic literatures. We should give them training in etiquette. We should give them training in culture. We should give them training in spiritual understanding. लेकिन यूथ से सबसे दूर हो रहा है। So मेरी सारी यूथ के साथ इससे एक प्रेयर है कि वो इस चीज को समझे। पहला कि हम पर अटैक किया गया हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे कल्चर को डिमीन करने के लिए, और वो अभी भी कह रहे हैं क्या तुम धोती कुर्ता पहन के पंडित जी है क्या, तिलक लगा के घूमते हो पंडित जी है क्या? तो किस तरीके से कल्चर को किस तरीके से डिक्रीज किया जाए, उसको किस तरीके से शर्मसार कर दिया जाए जो व्यक्ति कल्चर को फॉलो करे। दैट इज वन थिंग। एंड लाइक धोती कुर्ता, वी वियर धोती कुर्ता, और कितनी कॉमन चीज थी इंडिया में 100 साल पहले। लेकिन अब अगर हम धोती कुर्ता पहन के बाहर जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, मेट्रोस में जाते हैं, लोग ऐसे घूरते जैसे मान लो एलियंस आ गए। No, we are not aliens. This is the culture that we have always been in for millions and millions of years, but now it is being erased. एंड सेकेंडली यूथ को ये समझने की जरूरत है कि वो जिस अंधी दौड़ में है ना, जिस रैट रेस में है कि मैं बस ये कर लूंगा ना, बस ये कर लूंगा ना, बस मैं 12th हो गया ना, फिर मेरा बीटेक हो गया ना, फिर मेरा एमबीए हो गया ना, फिर मेरी जॉब हो गई ना, फिर मेरा यूएस वीजा हो गया ना, फिर मेरी यूएस में जॉब हो गई ना, फिर मेरा ये हो गया ना। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। 98% of American employees are unsatisfied. I am not saying this. 95%. 2-4-10% होते तो हम समझते। 95% of American employees are not happy with their jobs. तो एक मैड रेस है कि I have to become successful, और उस मैड रेस में वो अपनी वेलबींग को भूल गए कि मैं भी कुछ हूँ। सिर्फ मुझे गोल्स आफ्टर डेडलाइंस आफ्टर गोल्स अचीव नहीं करने। I'm not this body, I'm soul. I have to take care of this soul. You are not this body. जिस तरीके से आज मैंने कपड़ा पहना है, कृष्णा से भगवत गीता, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नमानि देहि। जिस तरीके से मैंने आज ये बॉडी कपड़ा पहना है, अभी सुबह उतार दूंगा, दूसरे कपड़े पहनूंगा। इसी तरीके से आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर एक्सेप्ट करती है। और आपने हो सकता है डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, एमबीए, बीटेक, एमटेक जो भी किया हो, जब आपका दोबारा जन्म होगा कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। So we are not saying you don't study, we are not saying you don't work. Even I am working, I am a professional. But we also have to understand the purpose of human form of life. That human form of life is for God realization. अब बाकी चीजें करते हुए भी you can understand God, you can develop your relationship with God, you can understand your true identity, and that only can make us successful. Otherwise, it is not possible. Otherwise, हो सकता है आप गधी की तरह बोझ लादते रहे पूरी जिंदगी, but at the end आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। Nothing is gonna go with you except for your love for God and your Krishna consciousness, God consciousness, like that. प्रोफेशनल लाइफ की बात की, तो आप उसको और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? Very easy. Morning time is for spiritual life. You wake up early in the morning, like we every day wake up in the morning and we chant Hare Krishna Maha Mantra. So we do some mantra meditation, we worship the Lord, we read scriptures, we listen something, which spiritual talks हम सुनते हैं, and then you are ready to rule your day. So morning hours are for spirituality, for our personal grooming, for our Krishna consciousness, and day you can do your job, your studies. आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कर सकते हो, like that. If you divide time, it's very easy. Weekends में we should try to go to temple, festivals we should try to go to temple, associate with their get connected with the community. Like India के लगभग अब हर major minor शहर में we have an ISKCON temple. So you should go to your ISKCON nearest temples, try to get involved in the community and be a part of it. And it's a blissful life. No problem at all. Blissful life. वेस्टर्न कल्चर की बात की, इंडिया में भी अब देखने को मिलता है कि उनके पास जॉब है, पढ़ाई करते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास मन की शांति नहीं है। तो आप बताएं कि मन की शांति क्या होती है? Yeah.
Actually, like when I was in Haridwar, I used to go to Rishikesh for distributing Bhagavad Gita and things. तो ऋषिकेश में बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, तो आई वुड डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता टू देम एंड आई आस्क्ड देम कि आप इंडिया में आए, हाउ यू फीलिंग? ही सेड वी आर वेरी डिप्रेस्ड। लाइक जब हम इंडिया में आए तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे तो लोग एवरीवन विल बी फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, एवरीवन वुड बी गॉड कॉन्शियस एंड वी कैन डिस्कस फिलॉसफी, हम उनके साथ शास्त्र डिस्कस कर सकते हैं। बट हमने यहाँ देखा कि बाबा लोग तो गांजा फूक के पड़े हुए हैं और जो लोग हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के साथ। सो हम तो बिल्कुल एक अलग इमेज लेकर आए थे कि हम वहां पे परेशान है 9 to 5 में और इतना कंपटीशन है, इतनी एनवी, इको जेलेसी है। नॉट दैट ऑल अमेरिकans are envious, ego jealous. I'm not trying to paint West as evil, but there is a lot of problems in West. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इंडिया जाके इन सब प्रॉब्लम्स का मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। बट यहाँ के लोग वेस्ट को फॉलो करने में लगे एंड एवरीवन यूज्ड टू से यार वी आर वेरी डिप्रेस्ड, कि हम जो सोच के इंडिया में आए थे, इंडिया इज एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। इंडिया इज ट्राइंग टू एप द वेस्ट, वेस्ट की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम परेशान हुए हैं, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, दे विल आल्सो बिकम फ्रस्ट्रेटेड। So and you see in ISKCON there we have temples around the world, and we see ki even in most developed countries like Europe and America, uh, people are like frustrated, deeply frustrated. क्यों frustrated है? क्यों frustrated है? Because they are not taking care of their soul. Body is like cage, yeah, body is like car and soul is like driver. आप कार की तो खूब मालिश करवा रहे हो, उसकी सर्विसिंग हर हफ्ते उसकी सर्विसिंग हो रही है, लेकिन अगर आप ड्राइवर को खाना ना दो, कितनी देर आप वो कार चलाओगे? कुछ देर तो कार चलेगी, लोग बाहर से तालियां बजाएंगे कि अरे वाह क्या शाइन कर रही है आपकी कार, चेहरा दिख रहा है इसमें भैया। बट कुछ देर बाद वो कार रुक जाएगी, आप कितना भी पॉलिश कर लो कार नहीं चलेगी, बिकॉज द ड्राइवर इज डेड। ड्राइवर इज डेड बिकॉज आपने ड्राइवर को फीड नहीं किया। इस तरीके से दिस बॉडी इज लाइक कार। हो सकता है आप इसको पॉलिश करें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाएं, अच्छी क्रीम लगाएं, अच्छे कंपनियों में जॉब करें, अच्छे कॉलेज में जाएं, दैट इज ऑल राइट। बट the goal, the driver, soul, we have to take care of that as well. हमने soul को छोड़ दिया मरने के लिए, you starve, I don't care, I don't give a damn, and soul is starving because there is nothing spiritual in life, and eventually soul will starve like that. So इस तरीके से you will get frustrated at the end, यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं कुछ नहीं हो रहा यार, ये क्यों कुछ नहीं हो रहा यार, मैंने MBA कर ली, मैंने बीटेक कर ली, मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए, मैं खुश क्यों नहीं हो रहा यार, मैं खुश क्यों? जैसे अगर आप टेम्पल्स देखो, टेम्पल्स में मेजरली बूढ़े लोग आए हुए। क्यों बूढ़े लोग आए? क्योंकि उन्होंने ये सब की फिलॉसफी होती है, बेटा हमने पूरी जिंदगी देख ली, कुछ नहीं है जिंदगी में रखा हुआ, अंत में तो भगवान राम के दर्शन, यही अच्छा है जिंदगी। हमने सब देख लिया, 20s देख लिया, 30s देख लिया, 40s देख लिया, 50s देख लिया, कुछ नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे ही घूम जाएगी और हम we will miss the goal of human form, and then we'll again go into पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार किसी माँ के घर में जाना, उल्टा लटकना, 8-9 महीने पे डिलीवरी, वह फिर उसके बाद बड़े होना, फिर वही काम करना, फिर मरना, फिर दोबारा जन्म लेना। Why to get into all this? Read Bhagavad Gita, practice philosophy, take the names of God, and make your life successful while doing your other duties as well. So there is nothing loss. There is no loss. You are never at loss, but the gain is immense. आप मेजर नहीं कर सकते कितना फायदा होता है by practicing this science of Krishna consciousness, by practicing spirituality. नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा is immeasurable, unfathomable. Read Bhagavad Gita, associate with devotees, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and make your life successful. This is real success of human form of life. Chanting Hare Krishna, associating with devotees, practicing Krishna consciousness, reading Bhagavad Gita, and have a blissful life. इतनी टेंशन क्यों लेनी लाइफ में? Krishna is blissful. As Atma we are blissful. So we are Satchidanand. Krishna is Satchidanand, eternal, blissful, and full of knowledge. We as Atma we are also eternal, blissful, and full of knowledge. Then why to take so much tension in this world? Why to take so much tension? Krishna is saying, why do you worry? Just practice Krishna consciousness, carry on with your life, and live a blissful life. So everyone should chant Hare Krishna. We should read Bhagavad Gita. We should practice philosophy, practice Krishna consciousness. It is a blissful, amazing, crazy, crazy life. So just give it a try. तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो यूथ है उनको भी पता लगा होगा कि हमारे कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे बनाए रखे। और आप जैसे लोग हैं जो
भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैला रहा है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। Thanks to you also that you bought this topic. Otherwise, not many people are interested in it. But thanks to Yash you also that you bought this topic. You are also interested, and आप अपने viewers को एक मौका दे रहे हैं to know about this philosophy. So, thank you very much to you as well. आप हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बने उसके लिए शुक्रिया। Yes, thank और you. इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अनदर गेस्ट। टिल देन कीप बीइंग ऑसम। Hare Krishna. Thank you very much. Thank you for having me.